Good evening, students. We are going to start with styles of note making. Tables, charts, bar charts, pie charts, flow charts, line graph, tree diagram, pictograms, maps, and plans. These are the styles of note making. In other words, the examiner may set the question paper of note making in tree diagram, sometimes flow chart, sometimes pie chart, sometimes maps, and sometimes pictograms. So these are the vivid styles of note making. Now I am going to read the passage of note making that is about Ayurvedic medicine facts. What are the facts of Ayurvedic medicine? In it, fundamentals of Ayurvedic medicine. What are the fundamentals of Ayurvedic medicines? Why Ayurvedic medicine is valuable? What is the value of Ayurvedic medicine? Why it is important, etc. To understand Ayurvedic treatment, it is essential to have an idea of how the Ayurvedic system regards the human body. The basic life force in the body is pran, which is also found in the elements and is analogous to the Chinese notion of chi. As Swami Vishnu Devananda, a yogi, an expert, put it, pran is in the air but is not the oxygen nor any of its chemical constituents. It is in food, water, and in the sunlight, yet it is not vitamin, heat, or light rays. Food, water, air, etc. are only the media through which the pran flows. Explanation about the first paragraph. To understand Ayurvedic treatment, it is essential to have an idea of how Ayurvedic medicines regards the human body or how Ayurvedic medicines benefits the human body. And in our human body, the basic life force is pran, which is the only the element. It is not oxygen but is in the air. As we know that the three basic necessities of individual are food, clothing, and shelter. In the same manner, food, water, air are very important for the pran, for the energy of pran which flows in our body. So this is the first paragraph explanation. Explanation of second paragraph. In Ayurveda, there are 5 basic elements that contain pran: earth, water, fire, air, and ether. These elements interact and are further organized in the human body as 3 primary categories or basic physiological principles in the body that govern
all bodily process known as the doshas. The three doshas are vata, pitta and kapha. Each individual has a unique blend of the three doshas known as the person's prakriti, which is in the reason why Ayurvedic treatment is always personalized. In Ayurveda, illness is regarded as a state of imbalance in one or more of a person's doshas, and an Ayurvedic physician works to adjust and balance them by a variety of methods. Explanation: there are 5 basic elements that contain pran: earth, water, fire, air and ether. ये 5 प्राण के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये मैंने आपको बताया, और ये जो एलिमेंट्स है एक दूसरे से वो इंटरैक्ट करते हैं और ये एक प्राइमरी कैटेगरी का काम करते हैं। और साथ ही साथ जो 3 दोषास जो है, जो इंसान में दोष पाया जाता है, 3 दोष है। एक वटा वात बोलेंगे इसको, पिता दैट इज पित्त एंड कफ। और ये जो तीनों ये जो दोष है उसी का नतीजा ऐसा है कि इंसान की प्रकृति क्या हो जाती है, बिगड़ना शुरू होती है, या उसका समतोल जो रहना चाहिए वो नहीं रह पाता है। और इसके लिए आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए कोशिश करता है, और इसके लिए आयुर्वेदिक को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। Explanation of 3rd paragraph. The Vat dosh is associated with air and ether, and in the body promotes movement, agility. Vat people are typically thin and light, physically dry skin, very energetic and mentally restless. When Vat is out of balance, there are often nervous problems, hyperactivity, sleeplessness, lower back pains and headaches. वात दोष में वात दोष जो होता है वो हवा और ईतर जो हमारे बॉडी में होती है वो एजिलिटी प्रमोट करने के लिए फ़ायदेमंद है। और ऐसे लोग जो होते हैं टिपिकली बहुत थीन होते हैं और फिज़िकली ड्राई स्किन होती है इनकी, एनर्जेटिक तो होते हैं लेकिन मेंटली हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। और वात आउट ऑफ बैलेंस हो गया तो उसका असर बुरी तरह से नर्वस सिस्टम पे होता है, जिससे हमें हाइपर एक्टिविटी दैट इज़ नोन एज हाइपर एसिडिटी, उसके बाद स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है, लोअर बैक पेन शुरू हो जाते हैं और हेडेक्स होते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है। यह है वात दोष का प्रॉब्लम्स। उसके बाद पित्त दोष। पित्त का मतलब होता है एसिडिटी, इज एसोसिएटेड विथ फायर एंड वाटर। उसका जो संबंध है फायर और वाटर के साथ है। जब पित्त बढ़ता है इंसान के जिस्म में
तो खट्टे डकार आते हैं और जलन महसूस होती है सीने में। ये है पित्त दोष। इन द बॉडी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड डाइजेशन। बॉडी में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस और डाइजेशन को अच्छी करने की। लेकिन जब पित्त होता है तो मेटाबॉलिज्म हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है। और जब डाइजेशन ख़राब हो जाता है तो पूरे हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर उसका बुरी तरह से असर होता है। पित्त कैरेक्टरिस्टिक्स आर मीडियम बिल्ड बॉडीज, फेयर स्किन, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन and good mental concentration. Pitta imbalances show up as anger and aggression and stress related conditions like gastritis, ulcers, liver problems and hypertension. जब किसी को पित्त हो जाता है, उससे परेशान होता है एसिडिटी से, तो उसके बॉडी का इम्बैलेंस होता है, फिर वो दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालता है, एग्रेसिव होता है, स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस होते हैं इसके, हमेशा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आता है इसको, अल्सर का प्रॉब्लम आता है, लीवर प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं और हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम आते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया वात का क्या दोष होता है, दूसरा मैंने बताया आपको पित्त का क्या दोष होता है, अब तीसरा है द कफ दोष। कफ का मतलब जो कफ होता है, जमा होता है, जो हमारे लंग्स में जो कफ जमा होता है, इसको कफ कहते हैं। इज एसोसिएटेड विथ वाटर एंड अर्थ। उसका संबंध पानी और अर्थ के साथ किया है। पीपल कैरेक्टराइज एज कफ आर जनरली लार्ज और हेवी विथ मोर ऑयली कॉम्प्लेक्शंस। कफ पतला भी रहता है और कफ जाड़ा भी रहता है। कफ पतला करने के लिए डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और उसी की वजह से कॉम्प्लेक्शंस बढ़ते हैं। कफ के वजह से कुछ लोगों को दमे की शिकायत शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के लंग्स खराब हो जाते हैं, दम लगना शुरू होता है, कुछ लोगों को पल्मोनरी डिसीज शुरू हो जाता है, पल्मोनरी बीमारी होती है। बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो कफ की वजह से होती है। दे टेंड टू बी स्लो, काम एंड पीसफुल। कफ disorders manifest emotionally as greed and possessiveness, and physically as obesity, fatigue, bronchitis and sinus problems. जिसमें कफ जमा हो जाता है उसको ओबिसिटी आती है, मोटापा आता है, फटीग, नर्वसनेस, ब्रोंकिटिस होता है और साइनस प्रॉब्लम्स आते हैं. थैंक यू. Now we are going to start with tree diagram. Now let's complete the following diagram that represents Pran and its elements. Pran basic elements, पहला दिया है अर्थ, सेकेंड दैट इज डैश, थर्ड फायर, फोर्थ एयर, फिफ्थ ईथर. जो सेकेंड जो दिया है, जो डैश दिया है, जो ब्लैंक है, उसको आपको फिलअप करना है. उसके बाद बॉडीली प्रोसेस, 3 दोष, वात, पित्त एंड कफ. एसोसिएटेड पहला है वात विथ एयर एंड ईथर. पित्त का दिया नहीं है, वहाँ पर ब्लैंक है, वो आपको लिखना है. कफ, वाटर एंड अर्थ. उसके बाद वात, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये बताए. थिन एंड लाइट, फिजिकली, ड्राई स्किन, एनर्जेटिक, मेंटली रेस्टलेस. पित्त के कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, मीडियम बिल्ड बॉडीज, फेयर स्किन, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, गुड मेंटल कंसंट्रेशन.
और कफ के कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिए हैं, वो आपको क्या करना है, फिलअप करना है। उसके बाद वात, उसका इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस के जो ब्लैंक्स है वो खाली है, वो आपको फिल करना है। पित्त, इम्बैलेंस शोज क्या है उसके, एंगर, एग्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स, liver problems, hypertension. These are the disadvantages of pitta. Because of pitta, there is imbalance in our body. उसके बाद imbalance shows, कफ का बताया गया है, manifest emotionally greed, possessiveness, फिजिकली बताया है ओबिसिटी, मोटापा, फटीग, नाराजगी, ब्रोंकाइटिस, खांसी, और साइनस प्रॉब्लम्स, उसको हमेशा छींक आती रहती है और नाक से पानी बहते रहता है, इससे इसको कहते हैं साइनस प्रॉब्लम्स। अब उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर दिया है नीचे, ट्रांसफर द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। बॉडीली प्रोसेस, दोष associated with characteristics and imbalance causes। पहला है वात, associated with air and ether। पित्त, associated with, जो है वो आपको लिखना है, वो बैलेंस, ये ब्लैंक है। कफ, वो भी ब्लैंक है, वो आपको भरना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वात के, ये आपको लिखना है। पित्त के कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रॉन्ग डाइजेशन। कफ के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है। इम्बैलेंस कॉजेस क्या होता है वात के वजह से, पित्त के वजह से, ये आपको लिखना है। और कफ का वहाँ पर उन्होंने दिया है ग्रीड। इस तरह से मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी कंप्लीट की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।